चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 48। अमाहल, ठीक है। You should assume that today's date is 1st of September 2025. Explain with supporting calculations the capital loss which will arise on the proposed sale of the antique chairs to Nathi, and how this loss can be relieved. CADEN and AMAHLE, ठीक है। 48 then and AMAHLE। सबसे पहले उन्होंने पूछा है हमें एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हमें कितना कैपिटल लॉस हो रहा है और हम उसको कैसे रिलीव करेंगे, ठीक है। Then let's go ahead and answer the question. Okay. Cadden is a resident and domiciled in the UK and sole shareholder. Oh, ये देखो। Cadden is a resident and domiciled in the UK and sole shareholder, director and employee of Mandini Limited. Emma Hill, Cadden's wife, receives interest income in respect of bank deposit account and Komor। तो ये फैमिली बिजनेस का सम है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक्विजिशन ऑफ एंटीक चेयर्स। कैडन वाज गिफ्टेड सिक्स अ सेट ऑफ सिक्स एंटीक चेयर्स बाय हिज मदर फेबा on 3rd of March 2023. Shares had a market value of 1,52,000 on that date. फेबा purchased the shares for 1,06,000। तो ये फेबा का गेन वगैरह जाने दो, वो दैट इज नॉट अवर कंसर्न, ठीक है। उसके बाद sale of the two chairs to unconnected person for 42,000 on 10th of September 2023 and four remaining chairs valued at 93,000 on that date, ठीक है। Sale that took place in 2023 determined the cost for the remaining shares. So, though, so we need to calculate the cost that was allocated to the previous, कितने shares है वो? Previous two shares in order to determine what is the cost for the remaining four shares. Cost of acquisition A plus B and then A plus B and then we are okay. Wow. Please just don't ever do this again. Sorry. अभी हम आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ब्रैकेट ओपन दिस डिवाइड बाय दिस विल गिव अस कॉस्ट फॉर टू चेयर्स, ठीक है ना। सो thus the cost allocated to the remaining four chairs is cost of acquisition of 100% minus this. Nice. अब आता है, अब अभी हमें बस करने fill in the blanks. Karen was gifted a set of six antique chairs by his mother, Feba. Chairs had a market value of 1,52,000 on that date. तो 1,52,000 का हमारा टोटल कॉस्ट है, ठीक है। वी नो दैट। अभी हमने क्या किया था, केडन सोल्ड टू चेयर्स टू एन अनकनेक्टेड पर्सन फॉर 42,000। तो हम इसका लिखेंगे 42,000 ए का वैल्यू। फिर है बी का वैल्यू। बी का वैल्यू क्या है, द फोर रिमेनिंग चेयर्स वैल्यूड एट 93,000 ऑन दैट डेट। तो 93,000 का बाकी चेयर्स का वैल्यू था। यानी कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग चेयर्स है वो ऑटोमेटिकली 1,04,711 का बन जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने फिर ये वाला फॉर्मूला लगाया है पार्ट डिस्पोजल का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है ना। चलो, सेल प्रोसीड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज माई लॉस। चलो, मैंने बोला ये लॉस ही है तो मैंने लॉस लिख दिया।
सेल प्रोसेस, मैंने कितने का बेचे हैं ये? कैडन इज प्रपोजिंग टू सेल द फोर मेन चेयर्स टू हिज सन नैथी फॉर 35,000 on 6th of October 2025. The four chairs are expected to be valued at 99,000 on that date. Oh, so see, because just because it is an arm's length transaction, we are transferring the assets to Nathi for 35,000. However, so should not be the case. Accounting should take place for the remaining 99,000. ठीक है. So though we are transferring it at 35,000, accounting should take place at 99,000. मतलब हमको उसको अकाउंट करना पड़ेगा ऐसा. So thus we get a loss of 5,711. Now this loss can be carried forward or can be settled off with any other capital, with any other chargeable chargeable gains that have that have been incurred in the current year. Advice on the availability and effect of installment option for payment of Nathy's inheritance tax liability in respect of each of the investment property and antique chairs on the assumption that CADEN dies on 20th of March 2022. On the assumption, तो अपन ये copy paste करेंगे. On the assumption that CADEN dies on 20th of March 30, 32 नहीं है, sorry, 30 है. I don't know why I read it like that. We can see that the chairs were transferred at a value of 35,000 and 99,000. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम इधर क्या वैल्यू लेंगे, अभी हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा. Cadden's only previous lifetime given investment property to Nathi. सी सबसे पहली बात तो हमारा ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर ऑफ 3,80,000 है, बराबर है. सो नाउ ऑन दिस ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर टू नेटी ऑफ 3,80,000, मुझे लगता है वैल्यू हम लोग को 99,000 का अभी मतलब वो लेना चाहिए. सो 3,80,000 एंड 99,000 का हमने गिफ्ट ट्रांसफर किया हुआ है यहाँ पे हमें, बिकॉज इट वाज अ पीईटी, इट वाज फर्स्ट एग्जेम्प्ट, बट नाउ इट विल बी टैक्सेबल. सो 3,25,000 यहाँ से माइनस होगा, बचेगा. और ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर है, इसका मतलब है कि 3,000 और 3,000 माइनस करके ही उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है. So a annual exemption has been utilized, so no annual exemption is available for the chairs. अभी 3,80,000 minus 3,25,000 gives me 55,000. So 55,000 and 99,000. ठीक है, 55,000 and 99,000. Now tapper relief would be now that tax would be payable at the rate of 40%, and later that मतलब वो tapper relief will be available at the rate of whatever percentage. अभी वो percentage क्या है, वो कब मरा है, मार्च 30. तो आई थिंक यस डाइड 4 to 5 के बीच में, तो ऑब्वियसली उसको 40% का टैक्स रेट में मतलब वो मिलेगा. ठीक है, 40% का मिलेगा. आफ्टर दैट नाउ वी कम डाउन टू द डेट. हाँ, सो नेट टैक्स पेएबल वुड बी द अमाउंट. नाउ दे हैव आस्क्ड अस अबाउट द इंस्टॉलमेंट पेमेंट. आई थिंक इंस्टॉलमेंट पेमेंट टेक्स प्लेस ऑन अ ईयरली बेसिस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड, हाँ, आई फील दैट शुड बी द केस. एक बार अभी ये ए पार्ट हो गया तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं. वे, क्या हो गया, वेरीफाई. अरे यार, व्हाई माय जूम इज लैगिंग ऑल ऑफ अ सडन. कौन सा समझा वैसे ये.
Mhm. 48. Okay. पिंटो आ गया यार ये। ये रहा। तो ये सबसे पहले देखो 5711 का हमें लॉस बिल्कुल सही आया। ठीक है, दैट वी गॉट करेक्टली। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग्स आर क्वालिफाई फॉर एसेट्स ऑफ इनवॉइस फॉर इंस्टॉलमेंट फॉर पेमेंट ऑफ आईएसटी, सो दिस विल बी available in respect of the IHT payment at the date of provided NATI still owns the property. ठीक है, IHT will be payable in 10 equal installments commencing on 30th of September 2030. However, NATI sells the whole within that मतलब वो 10 year installment period, the outstanding liability will be payable immediately. तो बेसिकली वो 10 साल का, हम लोग 10 साल तक उस चीज को पे कर सकते हैं। ठीक है, इफ वी आर पेइंग इट फॉर 10 years, सो दैट मीन्स मतलब सॉरी 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम हमें उस चीज को पे ऑफ करना है। ठीक है, एंड वो 10 साल तक जाएगी लाइबिलिटी। शेयर्स डू नॉट क्वालिफाई एज एसेट्स फॉर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ ट्यूटोरियल नोट्स दिए थे, एक बार वो पढ़ लेते हैं। Installments for IHT can only be made on land and buildings or unincorporated business shares or securities where the donor has controlling I think मैं इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लूँ, बिकॉज मुझे ये चीज पता नहीं थी इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स के। आई न्यू कि वो ईयरली बेसिस पे होता है, वो उसका पीरियड क्या है मुझे वो नहीं पता था, तो वो 10 साल का है। ठीक है, चेयर्स डू नॉट क्वालिफाई, ये मेरे को नहीं पता था। ठीक है, तो यहाँ से ये दो चीजें हमें नई सीखने को मिली। wait, wait, ठीक है, नाउ आगे। Calculate Cadence taxable income for the tax year 25-26 on the basis that personal services company legislation applies to the budgeted fee income receivable by Mandini Limited in the year ending 31st of March 26. Mandini is a personally services company for the purpose of IAR 35 legislation. Its clients are private companies and qualify as small under IR 35 rules. Has budgeted fee income wholly from relevant engagement of 65,000 pounds in the year ending 31st of March 2026. Less 5% deduction, less 5% deduction. पेज पेज कैडन और ग्रॉस मंथली सैलरी ऑफ 1,500। ठीक है, तो फिर ये सैलरी हो गई 1,500 इंटू 12। तो भी इसके ऊपर एम्प्लॉयर क्लास 1 NIC -9100। एम्प्लॉय क्लास 1 NIC, ये वैल्यू हो गई। आगे, will pay CADEN a dividend of 35,000 on 28th of February 2026.
नीदर कैडन नॉर मंदिनी लिमिटेड हैज एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। क्या है? अम्हाले, अम्हाले के बारे में नहीं बताना है। ठीक है, दैट्स नॉट रेलेवेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन को जाने दो। 3.8। तो ये हो गया मेरा नोशनल, नोशनल सैलरी ना। तो ये हो गई मेरी नोशनल सैलरी। तो अभी केडन, एक सेकंड ना। अभी मेरे को बेसिकली इसका क्या बोलते हैं, आई हैव टू शो द टैक्सेबल इनकम ना। सो नाउ टैक्सेबल इनकम ऑफ, कौन है ये? टैक्सेबल इनकम ऑफ केडन, सॉरी, सैलरी। ठीक है, जो है 18,000 की नोशनल सैलरी, जो है टोटल, टोटल इनकम, पर्सनल अलाउंस, टैक्सेबल इनकम। तो ये हमारी बन जाती है टैक्सेबल इनकम 42,795। ठीक है ना। अभी इसमें से हाँ, आई थिंक एम्प्लॉई क्लास वन एनआईसी में माइनस करना है कि नहीं? माइनस करना होता है क्या एम्प्लॉई क्लास वन एनआईसी? हम्म, एक बार वो कर लेते हैं। एम्प्लॉई क्लास वन एनआईसी, फिर 570। तो ठीक है, ये मैंने आई थिंक एम्प्लॉय क्लास में एनआईसी माइनस करना चाहिए। लेट्स सी वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, लेट्स सी, आई डोंट नो। टैक्सेबल इनकम 42796 बराबर आया था? नहीं, व्हाट हैपेंड देयर? 5156 बिल्कुल सही आया था यहाँ तक। फिर 37,366, हाँ ये भी बिल्कुल सही आया था। ओके, टैक्सेबल इनकम दे हैव जस्ट कैलकुलेटेड, ओके ओके हाँ। अरे ये नहीं था यार, मैं क्यों हमेशा एम्प्लॉय एनआईसी ऐड करता पता नहीं, मैं फालतू में एक्स्ट्रा करने को जाता हूँ जब सब सही रहता है। टैक्सेबल इनकम आ गया 42,795 का, इनको आया 42,796 का। इट्स जस्ट दैट माइन्यूट एरर जो एक्चुअली पॉइंट्स के वजह से आएगा। मैं यहाँ पे 1228 कर दूँ तो आई थिंक एवरीथिंग विल गेट फिक्स्ड, बट एनीवेज मैंने जो किया है मैं वैसे ही रखा फिलहाल, तो ठीक है ना। ओवर नहीं करना है, क्लास वन एनआईसी फालतू में कैलकुलेट करके उनको नहीं बताना है। उन्हें जितना मांगा है वही बताना है, ठीक है, दैट्स इट। आगे, for the tax year 25-26 advise Amhale why interest receivable in respect of her bank account in the country of Comore will be subject to UK income tax, and explain with supporting calculations why this will not actually result in any UK tax payable। तो सबसे पहली बात तो एमएलए इज अ रेसिडेंट एंड डोमिसाइल्ड इन द यूके। अ पर्सन हु इज रेसिडेंट एंड डोमिसाइल्ड इन द यूके इज टैक्सेबल ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम। ठीक है, सो we can see that she earns employment income of 45,000 every year, makes gross pension, makes a contribution to personal pension scheme of 3,000 नेट एवरी ईयर। नेट को सबसे पहले हम लोग ग्रॉस करेंगे तो 3,600 ग्रॉस हो जाएगा। उससे हम लोग सबसे पहले तो बैंडविड्थ को बढ़ाएंगे। मैं वो लिख रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई
बट आई मुझे वो फकअप नहीं करना है कि मैं बैंडविथ मुझे मुझे वो बेवकूफ़ नहीं बनना है जो बैंडविथ नहीं बढ़ाता। ठीक है। मैं क्योंकि मैं वैसा बेवकूफ़ पहले पहले बन चुका हूँ, इसलिए आई थिंक इट्स 41300, है ना। 3700 में अगर मैं 3600 कर दूं, 3600 ही होता है ना, 3000। तो जहाँ, अगर 3000 ये मेरा नेट है, तो मेरा ग्रॉस कितना होगा, है ना। ओ 3750, ओके 3750 होता है वो। 3750, 41450, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। देन अगेन 41450 से, ओ गॉड, 125140 प्लस, अब AMAHLE bank account in Comore on 1st of January 2025. AMAHLE deposited 1,50,000 in bank account in Comore. ठीक है। बैंक अकाउंट पेज इंटर एट द रेट ऑफ 5% ग्रॉस। सो 1,50,000 पे 5% का इस बंदे को मिल रहा है, तो 7,500 ही इज गेटिंग ग्रॉस ईच ईयर। हमारे will not remit any of this interest income to UK. We are not मतलब वो remitting any other interest in any of this interest income to UK. ठीक है, that's it. ठीक है। the tax regime in Comore, the tax is withheld at the rate of 18% on all the interest income arising in Comore. The UK does not have a double taxation treaty with Comore, therefore unilateral tax treaty will apply. In the current scenario, we can see that Amale deposited 1,50,000, उसको बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, therefore अभी देखो, हाँ, इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन इंटरेस्ट इन कोमोर, तो वो कितना पड़ रहा है, 80, ये 7,500 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो 1,50,000 उस पे 5% जो होता है। ठीक है, 7,500 पे 18%, सो ठीक है, दिस इज टैक्स इन कोमोर। ठीक है, सैड। नाउ वी विल डू कंट्रोल C, कंट्रोल V, टैक्स इन यूके। अभी मैं यूके में अगर इस चीज का कैलकुलेट करूं, तो देखो क्या होता है। सबसे पहली बात तो यूके टैक्स के अंदर पहले 1,000, पहले तो हाँ, सो सी 37,700, नहीं रुक जाओ, उसका उसका एम्प्लॉयमेंट इनकम कितना है, 45,000 माइनस क्या, 12,570। दिस इज द एम्प्लॉयमेंट इनकम आफ्टर, अरे यार, आफ्टर पर्सनल अलाउंस। मैं क्यों ऐसे होता हूँ ना, पर्सनल अलाउंस। ठीक है, रिमेनिंग स्पेस इन द बैंड विल बी कितना, ये देखो, दिस माइनस दिस विच इज 41,450, तो रिमेनिंग स्पेस है 9,020 की। तो देयरफॉर 1,000 पे 0%, विच इज दिस इंटू दिस, बाकी के 500 पे 20%, विच इज 113,000। ठीक है, नाउ टैक्स इन यूके। ठीक है, टैक्स इन यूके इसको पड़ रहा है 1,300 का। ओके, why is it not actually result in any UK tax payable? Now, if we see the current scenario, we can see that he is already paying more tax, which is 13,050 in Comore, but and his UK tax payable will be 1,300 on the interest income.
and therefore no UK tax liability will actually arise, because according to the double tax relief or double taxation relief, 1350, मतलब more tax is already payable there, so therefore the relief will be available on the equivalent amount that has been paid in the UK on the lower of. So DTR will be available on the lower of uh, overseas tax paid UK tax paid on overseas income, first and second. ठीक है, so obviously more DTR मतलब lower of 13,000. Thus, the thus the payable tax liability, actually, तो payable नहीं, thus the tax liability on interest income from Comore will be 1,300, and equivalent DTR will be available for the same. So indirectly, no tax has actually been paid in the UK. बस परफेक्ट, ये हो गया भाई। कैसे क्या लिखा है भाई मैंने, वाह। मैं अपने आप पे एकदम से मतलब मैं मेरे को देख के लग रहा है कि वाह यार, क्या 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 ही किया है मैंने ऐसा। इंटरेस्ट अराइजिंग ऑन अमाला's बैंक अकाउंट इन कोमोर, एज अमाले is resident in the UK, she will be assessed or to UK income tax on the worldwide income, blah blah blah. Accordingly, she will be assessed on full amount of the interest, blah blah blah. In the tax rate 25-26, her contribution is 3,000, so net is 3,750. So 4,150, perfect। ये मैंने बराबर किया कैलकुलेट। टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम इज 39,930, परफेक्ट। ये देख, वो एक सेकंड, वेट वेट, हमारे टैक्सेबल इनकम, अच्छा उसने पूरा इनकम निकाला है, ओके 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 ओके। ये देखो, उसने पूरा इनकम निकाला हुआ है, दैट्स फाइन। तो व्हाट दे हैव डन, 4,500 प्लस 7,500 माइनस पे ऐसा उनके, वो ठीक है। सी बेसिक बैंड इज अवेलेबल, हाँ मुझे वो सब एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना एक्सेल पे किया है, मुझे वहां पे लिखना है थियोरी में कि बेसिक बैंड रेट विल बी अवेलेबल ऑन एट 0%। सो एज इज कमिंग इन द बेसिक बैंड 0%, सेविंग्स रिलेटेड बैंड विल बी अवेलेबल ऑन द फर्स्ट 1,000। तो फिर ये देखो 1,300 आ गया। As the interest income will have already been taxed in Comore, double taxation relief will be available. This will equal to the lower of the UK tax and overseas tax payable on his income. As the overseas tax payable of 1,350 exceeds the UK tax of 1,300, the DTR will equal the UK tax liability. Accordingly, there will be no tax payable in the UK. Nice. Good stuff. What all did we mess up actually in this entire question? Let's figure that out. मैंने यहाँ पे फालतू में एम्प्लॉय क्लास वन NIC में मतलब वो लिखने को गया, कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, और वो भी मैंने गलत रेट पे ही किया था। मुझे लगता है, क्या मुझे अब याद आ रहा है, मैंने उसका रेट ही गलत लिया था। मैंने उसका रेट भी 13.8% ले लिया था, जबकि उसका रेट एक्चुअली कुछ और ही होना चाहिए था, आना ही नहीं चाहिए था। बट उसका रेट भी कुछ और होना चाहिए था। एनीवेज दैट इज अ कंप्लीट, तो वो एक मैसअप था, या जबकि पूरी चीज सही थी। ठीक है, सो यहाँ पे 8 में से मुझे लगता है 8 तो मिल जाएंगे। 5 में से 3। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट, वो तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था इंस्टॉलमेंट का शिट। मैंने बहुत ही बेसिक IST का मतलब वहाँ पे मतलब वो शिट लिखा था, तो ये तो जीरो ही हो गया। और याद है 4 मार्क का क्वेश्चन, मुझे लगता है वो हमने बहुत सही सॉल्व किया था, ये भी अच्छे से सॉल्व किया था। एंड यार अच्छे सॉल्व किया था, हाँ हाँ, अच्छे सॉल्व किया था। तो 4, 3, 7, 7 + 8, 15, 15 एंड प्रोफेशनल में मैं 2 पकड़, तो प्रोफेशनल की अगर मैं जीरो ही पकड़ गया तो मतलब ये चलो ना, तो भी मेरे को 15 तो आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ओवरऑल डिसेंट। इसका अगर एक अच्छा क्लिप में बना पाया जहाँ पे सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं, तो वो आपको मिल जाएगा पब्लिक में। वरना ये बेसिकली मैं अगर इस सम को फिर से सॉल्व करूँ और अगर उस टाइम पे पूरा करेक्ट आ जाए तो नाइस, नहीं हुआ तो फिर यही एक वीडियो है जो है। थैंक यू, बाय।